Welcome. Now, today we are going to learn the next chapter, that is Histography, Indian Tradition. So, before going to the second chapter, let's recall what we have learned in first chapter, first topic. And we have seen histography, development in the west side. Okay. So, there we have gone through tradition method, first chapter also. We have seen how traditionally the historiography used to do their writing and narrative while experimenting different kinds of research. They having a scientific method. Some were dealing with chronological order. Some dealing with their critical analysis. हमने ये सब देखे थे last chapter में. Okay. Then we have seen development, scientific perspective. ये यूरोपियन पर्सपेक्टिव देखे थे कि वी हैव सीन रेने डिस्कार्ड्स, वोल्टेयर, विलियम फ्रेडरिक हेगल्स, इन सब की हमने ओपिनियंस भी देखे थे that how these people were differ by each century. They were like no, while doing the Rene was not happy with the Voltaire was not happy with the Rene, and then George was not happy with the Voltaire. Then finally, Karl Marx theory came. Michael Foucault, feminism, everything was time and time was there. And then we have seen the last one, that the notable scholars, which I have just explained you. These perspective, उनके जो change होता, they were known as notable scholars. यहाँ तक कि each and everything was very clear to you. I will soon will recover my file and send it to you. Now we are going to deal with the histography Indian tradition. These all both the development in the West. ये सारा चीज West की बात थी. But histography is not that. It's only in West. It's also related to all the people. ये हर एक जगह available था. It's like हमारे Indian society में और Egypt society में everywhere histography was the same. I again repeat, what is histography? It is nothing but the historical writing or of the art of writing history. It is the history of history. See, ये important word है. It is the history of history. एक history हो चुकी है, उसके बाद उस history को लिखा जाता है. That is the histography. Histography tells us the story of successive stages in the evolution of historical writing. It includes the evolution of the ideas and techniques associated with the writing of history and changing attitudes towards the nature of history itself. Eventually, it includes the study of the development of the plans, senses for the past. If you read this definition, it is not there in your textbook. Make sure ये जो मैंने लिखी हूँ, it is textbook में नहीं है. But I'll explain you again in Hindi. Histography जो लिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं historian. What do we call? Historian. Okay. And the writing of it, it is known as histography. ये जो राइटिंग होती है वो रिलेटेड टू हिस्ट्री होती है. कॉमन सेंस जो भी हमने किए जैसा भी किए वो सारा एक क्रिटिकल एनालिसिस के बेस पे होता है ना. हिस्टोग्राफी हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस द सक्सेसिव स्टेजेस इन द इवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग. सक्सेसिव स्टेजेस यानी क्या? ऐसा नहीं कि उनको एक लेवल पार किए तो दूसरा लेवल, उनको कोई सबवे सर्फ नहीं कर रहे जो लेवल पार कर रहे. दे उनकी एनालिसिस वी गेट नाउ एंड देन. वो एनालिसिस जब चेंज होते हैं उसके बाद जो हम लोग को राइटिंग्स मिलती है, रेने डिस्कार्ड के बाद जब वोल्टेयर की आई थी कि वो गुड्स और इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करके बताते हैं. बट फ्रेडरिक का कुछ और कहना था. उनका था कि अगर हम कोई चीज क्रिटिकली कर रहे हैं उसकी थिसीस बनती है, फिर उसकी एंटीथीसिस बनती है. सो दे वर गिविंग द डिफरेंट स्टेजेस और ये स्टेजेस सारे क्लियर थे व्हेन द राइटिंग वाज वेरी एनालिटिकल. जब वो राइटिंग बहुत क्लियर थी. It includes the evolution of the ideas and techniques associated with the writing of history and changing attitudes towards the nature of history itself. हमने लास्ट चैप्टर से ही पूरा रिलेटेड चैप्टर है आगे का भी, जैसे कि हमने लास्ट देखे थे. अगेन नोटेबल स्कॉलर्स पे बार बार फोकस कर रही हूँ because you have to keep in mind that these scholars were given much more
much more in the writing of history, and they were the historian who has initiated writing of historiography. So इंडियन ट्रेडिशंस का कहाँ से शुरुआत हुआ? इंडियन ट्रेडिशन का हिस्टोरियन से ही स्टार्ट हुआ, बट ये हम लोग इस आवाज अटक रहा है। हेलो, अब आ रही है? हाँ मैम, आवाज अटक रहा है आपका। अभी भी आवाज अटक रही है मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो, अब आई? यस मैम। हाँ, सो द इवोल्यूशन यानी चेंजेस, जो चेंजेस आई है वो चेंजेस हमने नोटेबल स्कॉलर्स में देखे। इट ड्यू टू डिफरेंट, मैंने एक स्माइलिंग फेस बोली माइकल फोकॉल्ट का देखने के लिए, उनका पर्सपेक्टिव सबसे अलग ही था। क्यों अलग था? बिकॉज वो 19th सेंचुरी के टाइम पे बात कर रहे थे, बट हमने रेने को देखे थे वो काफी पहले की 17 था 15, रहने का टाइम तो 15 सेंचुरी की बात है। तो व्हेन दिस इयर्स वर देयर, तब उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था, तब इतना ट्रेडिशंस मेथड ही फॉलो हो रहे थे, इतना साइंटिफिक रिसर्च का क्रिटिकली हमको नहीं मिला था। So it changes always. It changes with the attitudes towards the nature of history itself. Last में conclude किया है कि it's also development of the study of a man sense for the past. यानी जो भी historiography लिखा है उसका एक सेंस होता था। सेंस यानी ये नहीं कि हाँ मैं, बट वो जो प्रिडिक्शन था जो कि हिस्ट्री में फॉल्स होता है, वी शुड नेवर एवर प्रेडिक्ट हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री रिसर्च और एनीथिंग इज गिवन बाय अ क्लियर you know, I will say a clear documents, a clear way to express it. तो ये एक है, this definition is not there in the textbook. That is historiography in the ancient period. मैंने यहाँ focus किया ancient. What do you mean by ancient? For those who don't know about history well, who are like not bothered to learn what is ancient and medieval and modern period, historiography started during ancient time, ancient period. Now we are only focusing about Indian society. So whatever we are learning today, it will be truly based on the Indian perspective and Indian notable scholars. And this ground of ancient is very well known to you as you have reached the 10th standard clearly. Ancient. Ancient history as a term refer to an aggregate of the past events from the beginning of the writing and records, human and extending as far as post-classical history. Ancient में सबसे better word होता है जो हम लोग प्राचीन बोलते हैं, जैसे हिंदी में प्राचीन के टाइम की बात है। बट ये स्टार्ट कब से हुआ था? It started before Jesus Christ or after Jesus Christ? Here I want the answer. Search. If you see in the textbook also, it written Indian has mastered the art of writing as early as the 3rd millennium before Jesus Christ, that is BCE or perhaps. But here if you see ancient history is also during but वो जो history है before Jesus Christ की, उसको mention नहीं किया गया अब तक के, just because it was a religious text. It denoted that it is a religious text and should not be considered as a history. That's the reason वो history को हमने cut करके अलग रखना है. But it includes in the history. When we talk about ancient, the very first thing comes in our mind, in the people's mind, कि ancient मतलब क्या, ये प्राचीन मतलब क्या. तो सबसे पहले जो मैंने बताई थी, हड़प्पन civilization start हुआ था, where we have seen the people. But if you see this last word, post-classical history, evaluation of the mankind, the Stone Age, Iron Age, Copper Age, जो हुए थे, as you know, these age also known as ancient age, but they are not come in ancient period. याद रखो, ancient period में Stone Age, Copper Age नहीं होता है,
Do not consider these evolution of the Stone Age, these age as an evolution of the ancient period. They are just the evolution of history. Mankind शुरू हुआ था, but mankind का settlement, writing, it is clearly written in this. It's an aggregate collection है, वो एक sum है of the past event when it is started writing and recording human extinct. तो ये सारा चीज हमने हड़प्पा में देखा था. हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने ये देखे थे कि उस जो उनकी राइटिंग्स थी वो बहुत अलग लैंग्वेज में थी, जो कि अब तक डेसिपर्ड नहीं हुई, मतलब अब तक वो पढ़ी नहीं गई है. इट इज स्टिल अनरीडेबल, but yet it is understandable to the people, to the historian who is still researching on it, because एक small babies बोल नहीं पाता, but action speaks. This all things are there. Then we have seen उनके हड़प्पन के अंदर उनके टॉयज, उनके सब कुछ चीजें जो मिली थी ना, ये सब मिली थी. एंड आई एम अगेन फोकसिंग ऑन हड़प्पन. डू यू नो हड़प्पन को पाके ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. उससे पहले, बिफोर हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन. ना हाउ इन हिस्ट्री इफ यू गो थ्रू, फर्स्ट थिंग हम वैदिक पढ़ते हैं, उसके बाद से हड़प्पन पढ़ते थे. बट the real fact was that Harappan was the first and Vedic was the second. Now Vedic civilization में और हड़प्पा में बहुत ज्यादा डिफरेंस था ये दोनों सिविलाइजेशन में. और ये क्यों था और इसका इम्पोर्टेंस हिस्टोग्राफी में क्या है, मतलब एंशिएंट पीरियड में इसका क्या योगदान है, ये लेसन्स के लिए क्या. एज आई टोल्ड यू, इट इज ट्रूली बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशन. नाउ दिस हड़प्पन राइटिंग्स, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पन राइटिंग मिली है तो वो अब तक पढ़ी नहीं गई है, तो उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मटेरियल सोर्सेस है. मेक श्योर इफ यू आर राइटिंग एनी कीवर्ड्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के we have written records but they are not readable. We have only material resources from where the history of Harappan has been written by an historian. ठीक है, एक हिस्टोरियन ने उनकी सारे मटेरियल्स देख के हिस्ट्री लिखी है. देन वी कम नहीं, बट हड़प्पा अभी फिलहाल है क्योंकि वो एंशिएंट है हमारा. वैदिक, I think you are much aware of Vedic civilization where we have seen the Vedas. आपको पता है हमारा इनिशियल ग्राउंड जो है इंडिया का, इट इज संस्कृत. और हम हिंदी भी नहीं बोल सकते, ये है. ये जो राइटिंग्स थी ना उस टाइम की, ये बहुत क्लेवरली से बढ़ रही थी. एंड द पीपल ऑफ इंडियन यूज्ड टू राइट एंड राइट. अब ये जो सिविलाइजेशन बनी है ना, पता आपको कैसे बनी थी? ये ड्यू टू हड़प्पन पीपल. ना हड़प्पन पीपल की खासियत ये थी कि उस टाइम पे कोई भगवान नहीं थे. देयर वाज नो गॉड टू वर्शिप. हाउ दिस पीपल यूज्ड टू वर्शिप? They used to worship by looking at the clouds, by looking at the rain, by looking at the sun, by looking at the storms. उनके जो बीच में natural calamities, all the natural ना, जितनी भी natural calamities आती थी ना, तो वो उनको praise करना. For example, बारिश होती थी तो बारिश के सामने बोलते थे हे भगवान, मतलब उनका एक लैंग्वेज था. That was an easy way to, इसको कंसिडर करके जब हड़प्पन डिस्ट्रीब्यूट हो गया था बहुत फैक्टर में, और जितने लोग जो इंडिया के लाइक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहना स्टार्ट किए थे, दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड. एंड व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड, दे फॉर्म अ न्यू सिविलाइजेशन कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन. दीज पीपल लिटरेट देमसेल्फ बाय दिस वेदास. उन्होंने एक अपनी राइम्स और रिदम्स बना दिए थे, हाइम्स बना दिए थे, जब लोग ने ये वेदास को शुरू करे. एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ने अपना ही श्लोक बनाना शुरू करे, अपना ही वे बनाना चाहिए, विच इज नाउ वी रिफर इन द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में. ओरल सोर्सेज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं. ओरल सोर्सेज वैदिक से सिविलाइजेशन से स्टार्ट होते, बिकॉज जो इनके क्या बोलते हैं मंत्र होते थे, जो इनके होते थे, ये रिकॉर्ड नहीं होते थे, ये बस गाते जाते थे, क्योंकि इनके पास लैंग्वेज नहीं होती थी. जब इनकी लैंग्वेज बनी तो वो बनी संस्कृत लैंग्वेज. जब ये संस्कृत लैंग्वेज डिस्कवर हुआ तब हिस्टोरियंस, उस टाइम के हिस्टोरियंस, अब उस टाइम पे इंडिया में हिस्टोरियंस क्या काम थे, बट येट
क्योंकि यूरोपियन पीपल्स वेस्ट साइड, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, ये तो वेस्ट, ये तो इंग्लिश जानते थे, इन्होंने स्टार्ट कर चुके थे अपना पढ़ना. When these people started learning, they came to India by many ways. There was only sea routes and road routes. जब वो इंडिया आते थे, they used to see and they used to see the culture of every people, क्योंकि वो डिफर करता था. हड़प्पा तो चला गया था, बट जब वैदिक के टाइम पे ये सब चीजें चालू हुई थी, पीपल व्हेन स्टार्टेड एंटरिंग इनटू इंडिया, वैदिक सिविलाइजेशन में, दे स्टार्टेड जजिंग. और जब ये लोग जज करते थे, एज आई टोल्ड यू, इफ आई वांट टू मेक अ थीसिस ऑफ अ स्मॉल बेबी, आई हैव टू स्टे विद द बेबी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टिल द टाइम इट इज. अगर मैं टॉडलर से उसको एक बेबी की अडल्ट की इसमें चेंज करना है मुझे, तो उसको मेरे को वहां से चाइल्ड के अंदर, बिफोर 3 to 7 में उसको चाइल्ड बोलूँ, तो मुझे टॉडलर से चाइल्ड का पीरियड उसका नोटिस करना है, तो मेरी थीसिस बनेगी. द सेम वे व्हेन द यूरोपियन पीपल यूज्ड टू कम इनटू इंडिया, और द अदर पीपल यूज्ड टू कम इनटू इंडिया, तो ये आते थे, ये वैदिक पीपल लोग के साथ रहते थे. They start eating the same food, start wearing the clothes, they start learning it without any good amount of knowledge. And when they are done now, they go back again to their respective, houses. And there they start writing it. When they start writing now, so they include each and every minute detail. See, जैसे नोट डायरी होती है ना, वैसे लोग नोट डायरी करते थे. बट जब वो करते थे तो इंडियन पीपल वर नेवर नोइंग दैट इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि अभी वैदिक चल रहा है, सिर्फ संस्कृत ही फ्लरिश हो रही थी, लैंग्वेज. तो ये ऐसे, एंड देयर वर many हिस्ट्री which is found till now from the European people about India. तो जितना इंडिया अपने बारे में नहीं जानता है, उतना यूरोप हमारे बारे में जानता था, बिकॉज ग्राउंड लेवल यूरोप ने स्टार्ट किया था राइटिंग द हिस्ट्री. देन वी सी मौर्य डायनेस्टी. ये डायनेस्टी बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई थी, बहुत, क्योंकि ये मौर्य डायनेस्टी में सिर्फ कल्चर नहीं देखा गया, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर देखा गया, एक रूलिंग पावर देखा गया. और जब मौर्य डायनेस्टी शुरू हुई थी एंशंट में, तब इनमें एक तरीके से जुनून, एक तरीके से लड़ाई स्टार्ट हुई थी. वैदिक में कोई लड़ाई नहीं थी, वैदिक सिर्फ और सिर्फ मेन पावर्स और भगवान गॉड्स के लिए, इसके लिए ही था. बट मौर्य डायनेस्टी में ये पूरा चेंज हुआ. मौर्य में लोग सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिक पावर के लिए ज्यादा लड़े हैं मौर्य डायनेस्टी में, बिकॉज उनको अब पता चल गया था कि हमारी राइटिंग. तो मौर्य के अंदर जब उनकी राइटिंग होती थी, वी इवन सी अशोका ड्यूरिंग दैट टाइम. अशोका का अगर देखा जाए तो अशोका के पास, हमारे पास इस टाइम पे रिटन डॉक्यूमेंट्स अशोका के कैसे थे, जो आयरन पिलर्स पे उनके लिखे भी, कहा जो उनकी बायोग्राफी में खुद से लिखे थे कि मैंने ये दिन इतना दिन लड़ा हूँ, ऐसा किया हूँ. तो उससे हमें एक नॉलेज मिली है कि अशोका के टाइम की बात ऐसी ऐसी थी, अशोका के साथ जो रहने वाले थे. बिकॉज व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका और द अदर रूलर्स, they send their people, they send their daughter, child, wives and everyone to spread the news कि ऐसा ऐसा हुआ है. और जब उस टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो रिलीजन ज्यादा फ्लरिश होते हैं. वैदिक भी हिंदू सिविलाइजेशन बोला जाता है अभी, उनके वैदिक हमसे जुड़े हुए हैं, बट वैदिक को अब तक क्लियर ऐसे नहीं बोले कि वो एक काइंड ऑफ हिंदुइज्म आता है. बट मौर्य के बाद जब अशोका का टाइम आया है, तब दो रिलीजन एक इंडिया में प्रोग्रेस किए थे, जिनका नाम था बुद्धिज्म और जैनिज्म. तो ये दो लैंग्वेज, जब ये दो लैंग्वेज आए, तो इन दो लैंग्वेजों की रिटन डॉक्यूमेंट्स भी आए. मतलब उनकी एक बोलते ना, जैसे हम लोग बोलते भगवत गीता, वैसे उनकी एक होली बुक भी छपी गई है. उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन को भी रियलाइज हुआ था जो बचे कुछ थे. एंड देन वी सी रामायण, भगवत गीता, उनकी जो दो एपिक्स है वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर, वो भी छपी है. उससे ही हमने बहुत सारे मॉरल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड महाभारत और समथिंग, तो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक मॉरल वैल्यूज निकलती है उसमें से, एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स के लिए उनकी स्किल्स निकलती है, टेक्निक्स निकलती है कि हम सामने वाले को कैसे हराए, कैसे जीते. तो सिर्फ एक हम भगवान का गॉड की बुक करके नहीं बोल सकते.
किसी वो एक गॉड की बुक है, सिर्फ उसमें गॉड के बारे में लिखा है, नो। उसके बाद उसके बहुत सारी चीजें लिखी है, बहुत। जैसे मैं बताया स्किल लिखा हुआ है, तो ये स्किल हमने सीखे कहाँ से? उनकी जो आर्क थी, उनकी जो वे थी, तो वो then lastly concluded Maurya. So in your textbook they were clearly written that the foreign travelers, जो हमारे इसमें फॉरेन ट्रेवल्स थे ना, हमारे नेबरिंग कंट्री से ज्यादा आते थे। फॉर एग्जांपल नेबरिंग कंट्री हमारी चाइना थी। चाइना पीपल हमारे इंडिया में बहुत स्टार्टिंग में आके गए और हिस्ट्री लिख के गए। फहीम था जो सबसे पहला चाइनीज ट्रैवलर था, जो इंडिया में आके इंडिया के लोगों को जान के एंड देन ही वेंट ऑन। I repeat the conclusion paragraph of this historiography in the ancient period. Writing of the biographies of the king. जैसे हम बोलते हैं कि अशोका बहुत अच्छा रूलर था, सबसे बेस्ट था, तो ये कैसे पता चला? अशोका तो खुद आके बोले नहीं ना, हमारे पास उनकी कोई मूवी है कि उनको जज करें या उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स दिख रहा है, बट देयर वाज अ रिकॉर्ड व्हिच इज नोन एज बायोग्राफीज, जो किसी ने और ने अशोका के ऊपर लिखे थे। एंड इट वाज स्टेप बाय स्टेप उनकी लाइफ के बारे में लिखने के बाद उसको छोड़ दिया करते थे। इन द इंडियन हिस्टोग्राफी, Harsha Charit, written in the 7th century CE in Banabhatta, is a King Harsha biography. It portrayed a realistic picture of the social, economic, political, religious, and cultural life during the king's time. ये जो पेज नंबर 8 पे लास्ट पैराग्राफ दिया है, ये एक बार आप लोग रीड कर लो। ये एक मैंने लास्ट आपको कंक्लूडिंग क्वेश्चन फॉर योर अटेंशन ग्रैप्सिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो द एंशिएंट हिस्ट्री, जो मैं पहले रिलेट करी। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज द हिस्टोरियन हु राइट द हिस्टोग्राफी, he or she needs to know about the period ना। हिस्टोग्राफी के वेरियस काइंड है, जो पीरियड, वेरियस किंग, दैट इज रूलिंग पीरियड, उनका टाइम्स क्या होता था, डायनेस्टी, जियोलॉजीज। जियोलॉजीज उनकी फैमिली ट्री होती है, जो हमने लास्ट आर्कोलॉजी, जियोलॉजी ये सब पढ़े थे। तो जियोलॉजी यानी उनकी फैमिली ट्री। हमें पता है कितने सारे चंद्रगुप्ता 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते गए, देन उनके बच्चे बढ़ते गए, जो हमारे दिमाग से आउट हो जाते हैं। नॉन लाइकिंग हिस्ट्री पीपल्स को तो ये तो आधा समझ में नहीं आता है। तो डायनेस्टी जियोलॉजी पढ़ना जरूरी पड़ता है कि चंद्रगुप्ता 1 के बाद उनके बाद कौन रूल किया, एंड देन हाउ इट गोज। देन द टेरिटोरियल एक्सटेंट, उनका एरिया क्या था। सी, इंडिया को अभी फिलहाल हमें कंसिडर करना है द मैप विच इज लाइक पाकिस्तान इज आल्सो इंक्लूडेड, नेपाल इंक्लूडेड है हमारे पास, वेस्ट बंगाल। तो इंडिया पूरा एक अजीब सा शेप का था। देयर इज नो लाइक आई विल से एक ट्रपीजियम साइड समझ लो, ऊपर की लेंथ बड़ी थी ऐसी, और हम लोग क्रॉस कट में थे। सो इंडिया को अगर इमेजिन कर रहे हो तो इमेजिन करो बिफोर द टाइम of partition, and India was all, the land was all under in the Indian people. The administration works record किए गए हैं। It is now also well known that Ashoka का administration till now was the best administration, because वो रहते तो एक जगह थे, बट उनका जो पावर था हर जगह डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ था, और उन्होंने मतलब उस जमाने में जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थी, देन टू वो ट्रैवल करते थे फॉर 2 to 3 days टू जस्ट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो इतना अच्छा दिखाया है, अब तक हम लोग देख रहे हैं कि अब तक हम लोग कोई पीएम और सीएम को भी टक्कर नहीं दे पाए हुए। देन द पॉलिटिकल इवेंट्स, अच्छा गेम बजाते थे लोग, पीछे से वार करना तो उनकी आदत होती थी। तो जो हम लोग ने आज सीख के रखी, यू नो, वी स्टिल फॉलो, पीछे से वार करो। पॉलिटिकल इवेंट्स है। सोशल इवेंट्स जो उस जमाने में होते थे, जैसे कि सोशल इवेंट्स उस जमाने में एक रिलीजियस को पकड़ के नहीं होते थे, वो होते थे कल्चर के ऊपर, वो होते थे फेस्टिवल्स बनाने के ऊपर। सोशल इवेंट्स वो होते थे, कोई रिलीजियस के ऊपर खास इस पे जोर नहीं डाला है, क्योंकि अब तक जैनिज्म और बुद्धिज्म और वैदिक ने अपना ही एक ना ये बनाया था। बट वी नो दैट द मौर्यन एम्पायर लास्ट में कंक्लूड किए थे बुद्धिज्म। तो उनका लास्ट लैंग्वेज, उनका लास्ट रिलीजन एक बुद्धिज्म बन गया था। देन वी सी नेशनल कैलामिटीज, उनके जो चेंजेस उस जमाने में जो आई थी, इफ यू आर मच अवेयर माइट बी, नाउ देयर इज अ ट्रेंड लाइक गोइंग ऑन
not trend, I will say, it's just a message on your WhatsApp. When this coronavirus came, after every 100 years, there was one diseases were there. ये आपने कहीं तो पढ़ा होगा. पहले कोलेरा देखा हमने, ऐसे सा 4-5 नाम है. I have a pic, but I have to find it out, and then मुझे तो 5 मिनट चला जाएगा. बट ये बहुत वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे कि ऐसे ऐसे डिजीजेस आफ्टर एवरी 100 years के बाद हम लोग ने फेस किए. सो आप, if I get a chance, I'll show you. If you get a chance, you see on your WhatsApp. अगर वायरल हुआ है तो, नहीं हुआ है तो you can just Google it on. तो पता चल जाएगा आपको. Let's check it out. Yeah. See, मैं स्क्रीन बता देती हूँ. I hope फर्स्ट जो था 1720 में प्लेग. देन वी सी दिस व्हाट इज दिस क्लोरेरा. देन स्पेनिश फ्लू. अभी हम लोगों ने 2020 में कोरोना देखा है. सो आफ्टर एवरी 100 years, ये वो बहुत व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था. तो ये एक नेचुरल कैलामिटीज तो नहीं है, बट नेचुरल डिजीज बन गई है. तो इसका भी रिकॉर्ड होना जरूरी है. बिकॉज इसका रिकॉर्ड क्यों होना जरूरी है, इससे पता चलता है. देखो, हमारे पास स्पेनिश और 1920 और 2020 का बहुत क्लियर फोटो है, बट इसके ऊपर का पूरा पिक्चर पोर्ट्रेट किया हुआ है, मतलब स्केच बनाई है. इससे हम लोग को एक हिस्ट्री क्या पता चलती है कि अब तक वहां पर सही तरीके से टेक्निक्स पढ़ी नहीं थी. ये वाला भी आंसर आपके बुक में नहीं है. इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. To make it more easy and easy, I just put it on a point so that कभी आंसर लिखने आ गया तो बोर ना होए, और कुछ भी लिख दे समझ में आ जाए कि मेरे को आधा मुदा कैसे तो भी कंप्लीट करना है. ओके. Then we come to historiography in the medieval period. This period has given lot much. Medieval period in India, this period को ना बहुत ज़्यादा rather than being in the modern period, क्योंकि ये पीरियड में हमें सब मिला है. medieval period में हमको written sources, oral sources, material sources, सब चीज अवेलेबल है. What is medieval? Let's see. It's an important era in the Indian history for the development in the field of art, language, culture and religion. यहाँ पर religion भी आता है. अब तक हमने religion नहीं देखे हैं, यहाँ आता है because last जब मौर्य एम्पायर, बुद्धिज्म एंड ऑल सब स्टार्ट हुआ था, then these people, you know, मैंने एक स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों को मैंने एक्सप्लेन किया था एस क्यूब में बताते हुए, ये लोग यहाँ वहाँ बढ़ जाते थे पीपल्स, और ये लोग अपने ही स्टार्ट कर देते थे कि अब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है. देन दे फॉलो देयर ओन पाथ कि कैसे जाए कैसे ना जाए कैसे रहे. तो ये मिडिवल पीरियड क्या दिया? मिडिवल पीरियड ना, उसको दूसरा नाम हमारे इंडिया में देखा जाए तो हम लोग उसको मुस्लिम रूलिंग पीरियड बोलते हैं. मुस्लिम रूलिंग पीरियड. इसमें जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, मुझे बताई थी कि फॉरेन इन्वेडर्स जो हमारे आस पास के जो रहने वाले थे वासिया, वो आ रहे थे अंदर. उनको फ्री वीजा मिल चुका था, एंटर करो, हमारे साथ रहो, हमारे जैसा खाना खाओ और आप चले जाओ. ठीक है. ये जब चले जाते थे तो अपनी हिस्ट्री लिख देते थे, और हिस्ट्री लिखते किसके बारे में थे? इंडियन हिस्ट्री. दे आर नॉट इंडियन पीपल बट दे राइट इंडियन हिस्ट्री. सो ऐसी ही हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी जब हमारा राजपूत, जब मौर्य डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, लास्ट खत्म होने के कगार पे था, जब डायनेस्टी खत्म होने, तब ये छोटी छोटी डायनेस्टी जो स्प्रेड हुई थी, इन डायनेस्टी के 2-3 नाम मैंने लिखे हूँ, राजपूत, चोलास, बहामनी, पल्लवा. ये छोटी मोटी जो डायनेस्टीज जो हट गई थी और छोटा छोटा एरिया लोगों ने बनाया था. ये जो छोटे छोटे एरिया बनाने के बाद लोगों ने अपने आप में ही एक न्यू फॉर्म ऑफ वे, जैसे हम लोग आज देखते हैं. I'm not sure about any religion, but still I can say that there were a minute 9 to 10% difference in Gujarati, Kachhi, Marwadi, Jain. There are, but अगर हम लोग अगर नॉर्मल देखें तो नॉर्मल क्या बोलेंगे? अरे ये लोग तो गुजराती है, अरे ये लोग तो मारवाड़ी है,
अरे ये लोग तो जैन। इफ यू कम टू मुस्लिम यू सी, अरे ये तो सुन्नी है, अरे ये तो शिया है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ऐसे है। दे आर इन वन नेम। मुस्लिम कैटेगरी, गुजराती कैटेगरी, हिंदुओं में भी हम देखते हैं कोई गणपति के फॉलोअर्स होते हैं, कोई राम के फॉलोअर्स होते हैं। आई डोंट नो व्हाट द नेम इट इज। So why this happened? It is in history. It is given just because when the people used to separate their thing, na, they started. जैसे अगर मैं सेपरेट हो रही हूँ अपने लोगों को लेके, तो चलो भाई अपना एरिया लेंगे हम, क्योंकि इंडिया तो पूरा फ्री लैंड था। ये लोग जाते थे जहाँ उनको रिसोर्सेस अवेलेबल होता था, वहीं अपना दिनचर्या निकालते थे। एंड देन दे फॉलो देयर ओन कि हमको ऐसे ऐसे चेंज करना है अपनी लाइफ में, ये करना है और ऐसे ऐसे लड़ना है। दैट्स बिकॉज these people हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। जब ये सब चल रहा था ना, जब ये लोग सेपरेट बोलते ना, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। जब ये लोग यूनाइटेड थे तब तक ठीक था, बट जब ये लोग डिवाइड हो चुके थे, ये लोग ने अपने आप को जब डिवाइड कर दिए थे, सारे पीपल्स ऑफ यू नो वैदिक टाइम, मौर्य टाइम, जो जितने जमा हुए थे, इनका एडवांटेज लेने वाले थे बाजू वाली कंट्री, जो पता है स्कोप लगा के देख रहे थे कि वो लड़ रहे, चलो घुस जाते, हम लोग भी आग लगा कर आते। एंड ये लोग सोचे अब लड़ रहे तो लड़ाई में तो मजा आता है ना, जब एक दो मारना हो तो इधर से मारो उधर से मारो, सब मारो मिलके मारो। जैसे राज आगमन टपली करेगा तो सब आके उसको दनादन मारेंगे, अंदर से हम तो नहीं थे, हम तो नहीं थे, है ना राज? बट हम थे राज, पता है कैसे? जब हम सामने वाले को चांस देते हैं कि आ मुझे मारो क्योंकि मेरी आंख बंद है, तो राज ऐसा होता है कि सब आके धनाधन मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। ये राजपूत, ये चोलाज, ये बहामनी, इन लोग अपने इसमें ही बिजी हो गए थे कि भूल गए थे कि हम आसपास बहुत लोगों के साथ बैठे हुए हैं। और इसका एडवांटेज लिए हमारे दिल्ली सल्तनत रूलर्स। अब ये दिल्ली से पहले हम देखते कौन आए थे। दिल्ली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो आए थे ना, उनको दिल्ली बहुत प्यारा लगा था, तो लोग दिल्ली में रुक गए थे। अब उस टाइम पे दिल्ली नाम तो ऐसा था नहीं शहर का, जो हमने उनको अभी दिया है आफ्टर फॉर इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने दिल्ली दिया है। अभी क्यों? क्योंकि ये सारे रूलर्स आए थे चल के। राज जब चल कर आते ना, तो चलने के लिए हमको रोड लगता है, पानी में नहीं चल सकते राज। और हवाओं में तो डोरेमोन है नहीं कि चल ले, ना ही हम नोबिता शिजुका वाले सीन है। तो इसमें क्या होता था ना, लोग चल कर आते थे राज, बट इतना चलना ना इजी नहीं होता था राज। एज यू नो, थोड़ा सा रोड क्रॉस करो तो हमारी हालत टाइट होती है। तो क्या होता था, ये लोग आते थे कैमल्स हॉर्स पे ना। एक और सस्पेंस आपको बता दूं, कैमल एंड हॉर्स इज नॉट एन इंडियन एनिमल, इट इज ब्रॉन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को वही रोज के बिल्ली और डॉग्स एंड डॉगीज ही मिलते थे इंडिया में, जो बहुत ज्यादातर हमें कैट दिखती थी स्टिल। तो जब ये लोग आते थे, अब ये लोग कौन है राज पता है? सब बाजू वाले कंट्री लोग थे। अब पाकिस्तान तो हमारा में ही था, तो पाकिस्तान को छोड़ दो, तो जो बात दुनिया थी बहुत बहुत थी, वो थी अफगानिस्तान, टर्की, ठीक है, वो थे अरेबिक पीपल्स। ये लोग क्यों आए? इनको क्या काम था राज आने का? इनको ये प्रॉब्लम था राज, क्योंकि पता है ना, जब आग मार रहे तो सब धनाधन, विवेक तो सबसे पहला मारेगा, अजय मारेगा, ठीक है। तो जब ये ऐसा होता था ना मारम मारी, तो सामने वाला ना समझ में नहीं आता कौन मार रहा है। अब ये सब चीजों में भाग्य लक्ष्मी भी बहुत एक्सपर्ट है मारने में, वो भी हाथ साफ कर लेगी, वो भी धनाधन देगी। बेचारी कशिश रिकॉर्ड एक हिस्टोरियन बन जाती है हमेशा, वो हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखती रहती है कि इसने तुझे मारा, उसने नहीं मारा, कुंजन भी हाथ साफ कर लेगी। तो ये ऐसा चल रहा था यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में। नाम जो आ रहे अब बाहर के फॉरेन यूजर्स, वो ऐसे ही टाइम पास करने नहीं आए थे, वो आग लगाने आए थे। वो आग लगाने क्यों आए थे पता है? क्योंकि ये पागल बेवकूफ हमारे जो थे, और जो सबसे ज्यादा दिमाग वाले थे, ये लोग ने सोना को ना छोड़ देते लावारिस। आओ, फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे, सोना लेके भाग जाते थे, चांदी लेके भाग जाते थे, फूड ग्रेन्स लेके भाग जाते थे,
बट हमको क्या है, हमको राजपूत और चोला की ही लड़ाई में एंजॉय करने का। सो इंडिया का डिफॉल्ट टाइम यहाँ पर शुरू होता था और बाकी सारे लोगों को चांस मिलता था इंडिया के बारे में जज करने का। मैम आपका आवाज कट हो रहा है। कुंजन अभी आई है बेटा, तो जस्ट एडमिट हुई है इसीलिए। हेलो, आया? बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है? विवेक लगता है ये सो गया है। विवेक विवेक, आर यू देयर? स्लीपिंग ब्यूटी। विवेक, तुझे स्कूल में क्लास में भी नींद आती थी, यहाँ पर भी नींद आती है, नहीं तो कैसे चलेगा विवेक? तू तो बोलेगा मैं हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट तो ध्यान नहीं दूंगा। अभी तो आज को इतना मारने के बाद भी तुझे इंटरेस्ट नहीं आ रही है। अभी मैं तेरे को मारूं? कुंजन मजबूत है तुझे मारने के लिए अभी। तो इस दिल्ली सल्तनत रूलर ने हमें ये राजपूत और चोला जो थे ना, इन लोग अपनी लैंग्वेज लिखते थे। इनकी लैंग्वेज भी थी, इनके कल्चर भी थे, इनके रिलीजियस भी थे, इनके भी बहुत साइड यू नो। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, प्लीज डू नॉट कंसीडर एज अ बिग एग्जांपल, और इसको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कौन सी मूवी है मैम शायद? आवाज नहीं आ रही है। वो नहीं, आवाज नहीं आ रही वाला। कुंजन, ये ऐसा कुछ है आपके घर पे? ओपन में रखेगी तो आवाज नहीं आएगी। वेयर समथिंग हेडसेट और हेडफोन करके। I'll speak louder then still. Where was I? Who will tell me where was I? I stopped by saying one statement. You were telling the example. Oh yeah, thank you. The example is like वो शाहिद और इसकी मूवी है ना, दीपिका की, कौन सी थी वो? पद्मावती, I guess, right? हाँ. It's an example of पद्मावत शाहिद कपूर उसकी। हमने देखी शाहिद कपूर और लड़ाई करता है इसके साथ, रणवीर के साथ। अब ये रियल है नहीं है, नथिंग सीरियस अबाउट इट, इसके बारे में डिस्कवर किया गया नहीं है, बट रिटन रिकॉर्ड। और ये आई टेल यू, उसका सिर्फ मैं ना बैकग्राउंड दिखा रही हूँ। आप शाहिद कपूर को मत देखो, ना ही दीपिका को कंसिडर करो, आप सिर्फ वो बैकग्राउंड देखो कि इफ यू हैव सीन द मूवी और इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी, जस्ट इमेजिन उनके पास जो वेपन्स थे, उनके पास जो कॉस्ट्यूम्स, जो अटायर थे, वो जो एरिया में करते थे। शाहिद कपूर जो था उसमें कौन से तो राजा बना, आई डोंट नो, बट वो जो रूल करता था, इमेजिन दैट रूलिंग। तो ये रूलिंग जो लिखी गई है ना, उन्हीं की ही वे में लिखी जाती थी, ये उन्हीं की ही स्टाइल में लिखी गई है, तभी जाके ये पद्मावत बनी, तभी ये क्रिटिसाइज होके रखी है। क्यों क्रिटिसाइज होती है? क्योंकि अगर मैं मेरे इससे देखूंगी, तो अगर मेरा फेवरेट हीरो सब कुछ शाहिद कपूर है, तो मैं फेवरेटिज्म लेके बोलूंगी उसको मारा ही क्यों, मारना नहीं चाहिए था। आपके पास क्या प्रूफ है पद्मावत इतनी खूबसूरत थी? यू नो, सो द पर्सपेक्टिव हियर चेंज, एंड दैट्स द रीजन। जो ये पीपल्स होते हैं, जो हम जैसे पीपल जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हिस्टोग्राफी है। दिस इज व्हाट रियल हिस्टोग्राफी है। ऐसी ही जो दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हुई थी, जो मैंने बताई आपको, बाहर के लोग आए थे और उन लोग जब आते थे तो पाकिस्तान भी अपना ही था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर जो इंडस रिवर फ्लो होती थी ना, उनको वो पार करना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ा घूम कर आते थे। वो घूम के कहा जाते थे पता है? वो ऊपर ये कश्मीर की साइड से आते थे, फुल ऑन इससे नहीं आते थे। और ज्यादा से ज्यादा लोग पंजाब टेरिटरी में एंटर करते थे, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये उत्तरांचल के इधर साइड में बस जाते थे, इसलिए उनका नाम दिल्ली सल्तनत थी। अब ये जब आके रहते थे ना, तो यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, यहाँ के लोग कंसिडर ही नहीं करे कि अरे फॉरेन लोग सब बोरिया बिस्तर उठाकर, सारा सामान, बीवी बच्चों को लेकर आए हुए हमारे साथ रहने के लिए, लोग देखते ही नहीं थे, इनको बस अपने में ही लड़ने था। तो इससे क्या हुआ, एक हमें मालूम पड़ा
कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग पावर यहाँ पर बहुत कम है, जो कि हिस्टोरियन ने कैच करके लिखा है कि मिडिवल पीरियड में ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि इसके पहले जो हम देख रहे हैं कि उन लोग इतने मस्त से अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग किए हैं और यहाँ के सब खत्म हो गए। और फिर दिल्ली में जब ये लोग बसना शुरू करे तो ये लोग बोले कि आप हम रूल करेंगे। तो इनने क्या करे, सीधा सीधा इन लोग को हटाते गए, आप हटो, आप हटो, आप हटो, अब हमारी राजगद्दी हम संभालेंगे। एंड देन दे कम एंड गो बैक एंड कम एंड गो बैक। फिर वो लोग यहाँ पर सेटल होने लग गए। दे स्टार्ट डेवलपिंग मेनी मॉन्यूमेंट्स। अब आते हैं हमारे पास मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत बने, बहुत बड़े तो बहुत बने। जैसे कि हम पूरा नॉर्थ साइड देखो, सारे जितने भी टोम बने हुए, जितने भी सब स्टाइल बनी हुई है, राइटिंग्स बनी है, सब इस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज, अफगानिस्तान की टर्किश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज़्यादा। बिकॉज ये लैंग्वेज अभी भी हम लोग देखते हैं, इफ यू गो फॉर वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यू विल हैव एन ऑप्शन टू लर्न पर्शियन, बिकॉज पर्शियन लैंग्वेज बहुत फ्लरिश। तो धीरे धीरे संस्कृत की लैंग्वेज की जो क्वालिटी ना, वो दिन पे दिन गिरते गई और पर्शियन लैंग्वेज फ्लरिश होते गया। अब पर्शियन लैंग्वेज क्यों होता गया? क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर सेटल होने लगे तो इनको भाषा तो संस्कृत आती नहीं थी, तो इनको पर्शियन ही आती थी। अब ये बात करना सीखते थे। ये जितने सोल्जर्स, जो आर्मीज, जो अपने चेले को लेकर आते थे, तो वो क्या करते थे, वो सारे लोग यहाँ के फीमेल से शादी कर लेते थे, उनके साथ सेटल हो जाते थे। और सेटल होने के बाद अपने एक मतलब अपना ब्रीड आगे बढ़ाने का और अपना सल्तनत को आगे बढ़ाने का इनका ये मोटिव बन गया था। ये मोटिव इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि हाफ ऑफ द नॉर्थ साइड वर कैप्चर्ड बाय दीज पीपल। और धीरे 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 साउथ में थोड़े जो बच गए थे वो बचे थे। फिर मुगल्स का टाइम आया। मुगल्स कौन? ये जो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनका टाइम। ये लोग आए ना जब, तब हमारे पास दो रिलीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तब उस हम लोग ने एक नाम दिए कि जो बच्चे कुछ हमारे फॉलोअर्स थे, उनको हम नाम देंगे, जैसे राजपूत चोलास को हमने सबको मिल के एक नाम दिया था कि हिंदू। और ये जो फॉरेन से आए थे उनको नाम दिया था मुस्लिम। तो बहुत इन्वेडर्स जितने भी आए थे, इसके अलावा भी चाइनीज थे, बहुत थे। ये लोग आए हैं, पर इनका मोटिव सिर्फ इतना था, जो पढ़ के जाते थे और लूट के भाग जाते थे, पैसे नहीं देते थे लोग। बट ये जो दिल्ली वाले थे, ये लोग पैसे नहीं देते थे, बट ये लोग यहाँ पर सेटल हो गए थे। अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पर पैसे नहीं देते थे लोग, सेटल हो जाते थे। इसमें फॉरेन, ये अभी इसमें एक और एक हिस्ट्री आती है, इसमें फॉरेनर की ब्रिटिश लोग भी आए थे इस टाइम पे। बट वो आके सूंघे, लिए, जेब में भरे और चले गए। उन्होंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया रहने का, रूलिंग का। वो लोग देख रहे थे कि यहाँ पर फिलहाल स्ट्रॉन्ग पावर है दिल्ली सल्तनत का। तो विवेक वो लोग बोले, जब इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं लुखा हूँ, मैं मोटे लोग से पंगा नहीं लूंगा, क्योंकि वो बहुत खाते हैं, मोटे ताजे थे ना। हाँ विवेक, तो ये लोग दुबले पतले लोगों के ऊपर ध्यान, इन लोग बोले कि जब ये पतले हो जाएगी ना, खाने की कमी पड़ेगी, तब ब्रिटिश लोग बोले थे हम एंटर करेंगे। तो उसके बाद मुगल्स चलते रहे। मुगल्स जब चलते रहे, जब हम जैसे महाराष्ट्र पीपल, हम मराठी पीपल जो है साउथ में, हम साउथ में आते हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही कहानी चल रही थी। यहाँ मराठा पावर उठ रहा था। अब मराठा पावर तो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं आया है, कोई सिविलाइजेशन से भी नहीं आया था। ये कैसे आया कि भाई थोड़े पब्लिक मराठी में घुस गए थे, इधर आ गए थे। इन लोग ने मराठी, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, जो लैंग्वेज मिला, उसकी खिचड़ी बना ली थी कुकर में डाल के। और जब वो पक गई थी तो उनको एक नया फ्लेवर मिला, एंड दैट इज नोन एज मराठी लैंग्वेज। अब इनको मराठी लैंग्वेज लिखना थी, तो इन्हें क्या करे, जितना इन लोगों ने पढ़े थे उसी को इन लोगों ने ट्रांसलेट करना सीख गए। और तब से हम मराठी को बोलने लगे। मराठी को मराठी ही में रखा गया था महाराष्ट्र में, क्यों? किसी के समझ में नहीं आती थी मराठी लैंग्वेज, क्या चलने वाला है, क्या बोलने वाले हैं। तो मराठा लैंग्वेज ऐसी ही बढ़ते गई। और फिर हम लोगों ने देखा कि मराठा पावर ने दिल्ली सल्तनत, मुगल्स को साउथ में आने से रोका था। शिवाजी द मेन बॉस, उन्होंने क्या किया, जो लास्ट उनके मुगल्स जो बच गए थे, जो चाहते थे कि हम लोग ने हाफ ऑफ द नॉर्थ तो कैप्चर कर दिया है, अब हम लोग साउथ में एंटर करें, बट वो भूल गए। साउथ में एंटर करने के लिए उनको नॉर्थ महाराष्ट्र से गुजरना पड़ेगा।
तो लोग बोले नहीं, मराठा पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, लोगों ने अपनी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ा दी थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स शिवाजी महाराज वाज वेरी गुड इन द स्किल। आफ्टर अशोका इफ यू कंसिडर एज समवन, तो अकबर आते हैं मुगल्स के टाइम पे जो ज्यादा स्ट्रांग पावर थे, और दूसरे आते हैं शिवाजी लास्ट में मराठी महाराष्ट्र में, कि उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो भी बहुत स्किल थी, उनकी आर्मी बहुत स्किल थी, उनके पीपल स्ट्रांग थे, उनको उसमें बहुत धोखेबाजी मिली है फॉर श्योर। राजाओं को धोखा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? प्रजा को। प्रजा तो होती थी राजा को धोखेबाजी करने के लिए, जब उनकी अलग हिस्ट्री। बट जैसे कि मैं बताई हूँ, ये सारे सल्तनत जब आते थे ना, इन लोग की रिटर्न रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, और ये आज भी अवेलेबल है। और ये पता है सारे अवेलेबल किधर है? इंडिया में। इंडिया को छोड़ के सब जगह मिलेगी आपको। हर कंट्री की लाइब्रेरी में इंडियन बुक मिलेगी, जिसमें ये नोटिफिकेट नोटिस रहेगा अबाउट विजयनगर किंग आया था। ये सब साउथ, विजयनगर किंग साउथ में हमारे महाराष्ट्र को छोड़ के सेटल हुआ था। विजय किंग ने ना मराठी को देखा ना किसी को देखा, उसने बोला भाई मैं मेरा रूल करूंगा, मैं मेरा चलाऊंगा। एंड दैट्स द वे दिस हिस्टोग्राफी इन द medieval period have been written. Now I have just explained you just orally. If you go through this page now, if you read for 5 minutes silently, you will understand कैसा सीन गया है। तो मैंने इसलिए सिर्फ एक पॉइंट को नोटिस डॉट डॉट किया, और इसके पीछे की आपको कहानी बताई, सो दैट ये कहानी आपको ज्यादा बोर ना करे और समझ में आए कि, क्योंकि यहाँ पर सीधा स्टार्ट हुआ था द स्टाइल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन 12th सेंचुरी, जबकि मिडिवल पीरियड 12th सेंचुरी से स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम द 8th सेंचुरी। 8th के एंडिंग 9th की स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, और ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में ये एंड हुआ था, मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। टाइमलाइन अगर आप देखें तो टाइमलाइन में बहुत गड़बड़ी दिखाई है ये पीरियड। एंड देयर देखो आपको सब दिया हुआ है कि उनकी जो राइटिंग्स थी, तारीख फिरोज शाही बुक रिटन बाय हिम, फिर रूलर वेलियर उन्होंने जो लिखे थे, बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी, लॉयल्टी एग्जीबिशन, फिर तुजुकी बाबरी जो बाबर के टाइम पे लिखी गई थी, बाबरनामा, तुजुल मसीर, इनके इतने राइटिंग्स दी। देन अकबरनामा जो अकबर के ऊपर लिखी गई थी, बहुत है। फिर हम लोग साउथ में आए थे तो बखार्स जो डिवाइडेड द डायनेस्टी, इनकी ऑटोबायोग्राफीज, माइथोलॉजीज, ग्रीवियंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, फिर छत्रपति राजाराम महाराज के इम्पोर्टेंस, एक इनकी स्टोरीज। Now you have to read it. So if you have a textbook, just go through it and ask me you have stuck where or the other. I'm giving you 10, not 10 minutes exactly, but Kunjan, did you got all the answers, both the answers? कुंजन का अच्छा है, हाँ, पूछो तो गायब हो जाती है फट से। ये स्किल्स तो मुझे भी नहीं आते है कुंजन, जैसे ही पूछो वैसे ही गायब हो जाती है। और विवेक पहले ही पूछने से पहले मुझे म्यूट कर देगा या खुद गायब हो जाता है। आ गए कुंजन बैक। कुंजन, did you get the answers? Okay, so we'll move to the next slide, that is the historiography in the modern period, जो आप लोग इससे बहुत ज़्यादा अवेयर हो। And this modern means after 18th century till 20th century is considered as the modern period. So modern period in India began with then industrialization in the early 19th century by British rule. अब जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में हमेशा एक छोड़ के कुछ ना कुछ बोलती हूँ। अब मैंने बताई थी कि ब्रिटिश तो आए थे, अब उन्हें देखे कि यहाँ तो अपना ही झमेला, विवेक और राज अपने आप में ही लड़ रहे, तो वो सोचे छोड़ो अब लड़ने दो इनको, हम जा रहे हैं, हम फिर बाद में आएंगे, सब ये पतले पतले हो जाएंगे। So it happens that British has observed us for 100 years and he did not took any action. But when it started looking that the Mughal power were declining day by day and the Maratha power came, and then they seen that only Maratha power is ruling only in Maharashtra, other than कहीं पर ही मराठी की कोई
मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम फ्रीज हो गए, मतलब कैमरा उनका। हेलो। हेलो। हेलो भाग्यलक्ष्मी, सदक मैम कहाँ गई बेटा? क्या बोली मैम बेटा? मैम का वीडियो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप सब लोग जाओ मत, मैम ऑनलाइन ही है। अभी चालू हुई। हाँ, हाँ हाँ अभी चालू हो गई। हाँ ओके ठीक है, ओके ओके। ओके चलो ठीक है। सो दीज हिस्टोरियंस जो अभी तक हमको मिले हैं, दे आर इन इंडियन। ये सारे इंडियन ट्रेडिशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट ये इंडियन ट्रेडिशन को डिस्क्राइब करने का मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्दो आपको ये हिस्ट्री को जान के मतलब क्या, हिस्टोग्राफी को पढ़ के मतलब क्या, तो ये आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, जहाँ पर इनकी आइडियोलॉजीज को एक नाम दिया गया था, एक वे दिया गया था। हम लोग ने यूरोपियंस में एनल स्कूल करके पढ़े थे। याद है आप सबको? जो स्कूल, सो यू नीड टू नो एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग, जो एनल स्कूल्स मैम में आपकी डिस्क्राइब आवाज किए नहीं आ रही थे। है। हेलो, हेलो। हाँ, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? हेलो। हाँ। हेलो, हाँ मैम अभी आ रही है। अभी आई? ओके। सो ये जो एनल स्कूल्स की बात कर रही थी कि मैं एनल स्कूल्स में कैसा दिया गया था कि क्योंकि वो यूरोपियन में था, तो यूरोपियन स्कूल्स बताया गया था कि एनल स्कूल में सिर्फ ये डील नहीं करते कि इतना पढ़ो, क्रिटिकली करो। हमने लास्ट चैप्टर देखे, हर कोई अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखने के पीछे पागल थे एंड लिखते थे कि कैसे करना है। बट यहाँ पर इंडिया में हम तो आपस में ही लड़ लड़ के अपनी प्रजा को बढ़ा रहे थे। बट यहाँ पर लिखा जो हिस्टोरियन थे वो इंडियन नहीं थे, वो फॉरेनर थे। जितने जैसे मैंने बताई जेम्स मिल, ही वॉज अ फ्रेंच, तो वो आके हमारी हिस्ट्री लिख के गए। हम इंडियन से काफी टाइम बाद हिस्ट्री लिखे, काफी टाइम बाद, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं हुआ करता था। हमको सिर्फ इतना था कि हम पॉलिटिकल पावर कैसे एस्टैब्लिश करें। तो इसके लिए जब ब्रिटिश स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश ने इंग्लिश लैंग्वेज फ्लरिश किया। जब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पर फ्लरिश किया था,
और उन्होंने एक स्कूल बनाई थी जिसका नाम था क्रिश्चियन मिशनरीज करके। ये स्कूल्स का क्या योगदान था? ये स्कूल्स ना उनको रिलीजियस के लिए बनी गई थी, जहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ कैथलिक रिलीजन को फॉलो करना था। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ऐसे स्टार्ट हुई थी। उनको अपने फोर्स किया गया था कि उनको क्रिश्चियंस की बाइबल रीड करना है, उसके बारे में पढ़ना है। अब तक या तो हमारे पास रामायण है, भगवत गीता है, सबकी बायोग्राफीज आ गई है, सबके बारे में जानकारी आ गई है। मुगल्स ने हमारे को पर्शियन लैंग्वेज सब आ गया है, ये ब्रिटिश ने भी लेकर आया और सब आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, स्टॉप भी नहीं हुआ है। पूरा इंडिया भर दिया लोग ने हमारे सिर्फ राइटिंग से। तो तब एक स्कूल एस्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। ये स्कूल्स इसलिए स्टार्ट हुई थी बाय मेनी स्कॉलर्स। इस स्कूल्स में क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में लिखा गया था, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे दिया गया था। आप लोग को ये डिटेल में नहीं दिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। प्लीज इफ यू आर लिसनिंग, मार्क द कीवर्ड्स आर राइट। व्हाट इज क्रिश्चियन मिशनरी इज नथिंग, इट्स अ स्कूल सेटअप। और ये कोई एक स्कूल नहीं थी, ये बहुत सारी स्कूल थी ऑल ओवर द इंडिया। I'm repeating, this was the school set up by the British people, which is known as Christian missionaries. Their main importance, like to give, was to change the people, religion and culture, and make them into Christian missionaries. तो उनका सिर्फ एक ही फंडा था, the people who cannot able to read and write, take them, make them aware of what is reading and writing, and then put them into Christian. So ऐसे बहुत divert Christians आए हैं, इंडिया में एस्टैब्लिश हुए हैं, रहते हैं। एंड कोई रियल है, कोई ऐसे है जिसको हम लोग रोमन एंड कैथलिक्स में कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो ये उनका मेन मोटिव था फर्स्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में, कि पहले वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे। और ये हर जगह, मतलब इनको हर जगह से पकड़ पकड़ के लाते थे पब्लिक को और पढ़ाते थे। देयर वाज नो एज लिमिट, देयर वाज नो क्लास सिस्टम, देयर वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस goes on in this, and clearly reflecting the same for radical Indian culture. But इनका क्या होता था कि the 5 volumes of the Cambridge history of India published during this, और उनकी जो राइटिंग थी कैम्ब्रिज की, we know Cambridge is a university, और वो फाइनल डॉक्यूमेंट्स देती है। कैम्ब्रिज का ऐसा है कि अगर उसके पास कोई लिंक जा रही है, इवन इंडियन की भी हिस्ट्री कैम्ब्रिज ने ही फाइनल उसको क्रिटिकली करके हमको पब्लिश की है। तो जब ये लोग तो वहीं के ही लोग थे, तो जब हिस्ट्री का लिखना होता था तब जाके रीड, हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलोनियल देख रहे हैं, बट आगे हम देखेंगे कि इंडियन के पीपल लोग भी बहुत उठे हैं और इन लोग ने भी इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा लिखे हैं। बट अभी तक नहीं, क्योंकि अभी तक someone is saying something. Hello, I'm audible to everyone because only Tirth and Bhagyalakshmi is visible. बाकी राज, विवेक नहीं है, अजय नहीं है, कुंजन नहीं है। Only Tirth is continuously on the screen. Bhagyalakshmi is there. Vivek, Kunjan. Vivek, good morning. विवेक, बेड टाइम स्टोरी मेरी थोड़ी देर में और खत्म हो जाएगी, बिस्तर रेडी रखो बेटा। See your face, Vivek. This is not there in the textbook. If it comes for writing colonial history, you should know what is colonial history. If you give a proper definition and a reason for it, you won't let down your marks. Again, I'm saying, repeatedly I'm saying that these topics will not be repeated detail in the school also, because you have to keep in mind this year is going to be very fast. You won't get all the notes all the time. And if you Google it, you will waste your 2 hours while Googling it. Because there are lots of information about colonial history and you will fall short of time plus the records. Because 10th standard में it is not necessary कि आप हर history लिखें. Colonial history का अगर आप देखेंगे, as I told you, मेरे पास book है. घरून घ्या.
I can speak many much more thing about colonial history. See to it आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, आंसर्स है अभी. नेक्स्ट फर्स्ट इसमें भी वॉल्यूम्स छपे गए कैम्ब्रिज से, विच आई हैव सेड यू राइट नाउ कि 1922 से लेके 1937 में 5 वॉल्यूम्स यानी 5 बुक्स छपी गई थी. और कॉलोनियल का सिंपल था, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. कॉलोनियल हिस्ट्री मतलब कॉलोनाइजेशन जब सेटअप हुआ था, जब इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हो चुकी थी, जब पीपल यहाँ पर चेंज होने लग गए थे. इवन ब्रिटिश व्हेन दे केम, इवन दे मैरिड टू द इंडियन वुमेन्स, और वो यहाँ पर सेटल होने लग जाते थे. तो उनके जो बच्चे होते थे वो भी क्रिश्चियन ही कहलाए जाते थे. तो इस तरीके से ये मिशन स्टार्ट होता था. सो उसमें सबसे पहले ये बच्चों को अडॉप्शन पहला होता था, एंड देन दे ग्रैब द अदर पीपल इन द प्रोसेस. ठीक है. इसके बाद हुआ ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. नाउ व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट? ओरिएंटलिस्ट पीपल कौन थे? इनका क्या काम था? कॉलोनियल तो एक लैंग्वेज चल ही रहा था, एक बुक चल ही रही थी. हमने हमेशा देखे कि गुरुकुल करके एक नाम होता है, जब हम एक गुरु होता है और वो पेड़ के नीचे नॉर्मली पढ़ाते हैं, तो उसे हमें गुरुकुल स्टडीज बोलते हैं. तो उस वक्त स्टडीज ऐसी थी कि कोई भी एक पार्ट पढ़ाया जाता था, उसको एक स्टडीज बोला जाता था. ये नहीं कि आप अभी होमवर्क करें, नॉर्मल पढ़े, नॉर्मल जाने. एक पार्ट जिसे सुन के मन को शांति मिले, ऐसे वाला पार्ट होता था. और नॉर्मल वैल्यूज और समथिंग, और इसकी उसकी कहानी सुनाई जाती थी. बट ये सारे स्कूल्स में ऐसा नहीं था. ये स्कूल्स बन गई थी, इनमें ये पार्ट वाला सिस्टम नहीं था. इनमें ये था कि करना है तो आपको ये फॉलो करना है, आपको ये चीज पे जाना है, इतना लिखना है, इतना पढ़ना है. देन द ओरिएंटलिस्ट केस में यूरोपियन स्कॉलर्स ने बहुत सोच समझ के लिखा. दे वर मेनी क्यूरियस अबाउट राइटिंग बिकॉज इन लोग ने क्या किया, अब यहाँ पर इन लोग ने अपना ट्रेड स्टार्ट किया. जो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ब्रिटिश. तो ये इंडियन ने एक्सेप्ट की है, तभी हम ब्रिटिश की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. अदर देन दैट वी वर वेरी हैप्पी विद संस्कृत एंड इंडियन लैंग्वेज. बट क्योंकि अब हम लोग ने ओरिएंटलिस्ट कर लिए थे लाइफ में, तो हमको ये करना है. अब इसमें क्या हो रहा था, these scholars, some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. Orientalist मतलब वो लोग जो यूरोपियन थे, बट वो इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए संस्कृत लर्न कर रहे थे. ये जितने भी लोग जो इंडियन लैंग्वेज लर्न कर रहे थे, उनको कहते ओरिएंटलिस्ट. अब उनका झगड़ा होता था उनके पीपल के साथ. कॉलोनियल और ओरिएंटलिस्ट की बहुत झगड़े होते थे, कि कॉलोनियल तो उल्टा करता था, इंडियन को ब्रिटिश बना रहा था, बट ओरिएंटलिस्ट और उल्टा था, ब्रिटिश को इंडियन बना रहा था. ये आप कीवर्ड लिख दो, या तो आप डायग्राम कर दो वाइस वर्सा, कि आपको समझ में आए कॉलोनियल में और ओरिएंटलिस्ट में क्या है, क्योंकि आंसर्स में है ये. आई रिपीट अगेन, कॉलोनियल हिस्ट्री में ब्रिटिश हिस्ट्री was converted was flourished, so Indian history was converted into British people. और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्ट किए थे. बट ओरिएंटलिस्ट में ब्रिटिश पीपल आके इंडियन हिस्ट्री पढ़ते थे, जैसे संस्कृत हो गया, ये लैंग्वेज को लर्न करते थे और इनकी वॉल्यूम्स लिखते थे, यानी इनकी बुक्स लिखते थे. संस्कृत को ट्रांसलेट वो लोग इंग्लिश में करके लिखते थे. The similarities between Sanskrit and some of the European language, they found more on Vedic traditions. इनका मेन था कि वैदिक को पढ़ो, क्योंकि वैदिक में बहुत सारा पढ़ने को था. वैदिक कल्चर ने बहुत ज्यादा लिखा था. उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे ये ऑथेंटिक नहीं थे, बट उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास थे, क्योंकि लाइब्रेरी जो मैंने बताई, यूनिवर्सिटी जिसको लाइब्रेरी बोला जाता है अभी के दौर में, कि वहाँ जाके एक उनको सर्टिफाइड कोर्स तो नहीं मिलता था, बट उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना पड़ता था. तो द स्टडीज रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नेशन ऑन एन एशियन लैंग्वेज दैट कुड बी मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जिसको हमने लास्ट में नाम दिया इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. जैसे हम लोग बोलते हैं ना एशियन कंट्री, वी आर एशियन कंट्री, जो इंडिया के अंदर आई है, तो वैसे ये लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाती है, जिसमें संस्कृत और इंग्लिश का मिक्सचर होता था. इसके आगे ना खिचड़ी बनती थी. Kunjan, please repeat what I said.